Assalamu alaikum and good morning to all of you. Hope you all are doing well. This is your social studies class. Today I am going to share the summary of the new topic Pakistan's relationship with Muslim countries from lesson 8 Pakistan and her neighbors. Okay, in today's topic we will discuss about the relationship of Pakistan with the Muslim countries all over the world. So first of all we will discuss that what are the Muslim countries. Muslim countries are those countries whose governments have declared themselves as Islamic countries and where the majority of population are Muslims are called Muslim countries. यानी कि Muslim countries वो countries होती हैं जिनके गवर्नमेंट खुद ही ये डिक्लेयर करता है, ऐलान करता है कि हम एक इस्लामिक कंट्री है, हमारे रूल्स और रेगुलेशन या जो लॉज हैं वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होंगे और जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली मुस्लिम्स होती हैं उन कंट्रीज़ को हम कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज़. Okay, this is the map of the Muslim world. So majority of the Muslim countries are in the continent Asia and Africa. Apart from the neighboring countries, Pakistan enjoys the good relations with other Muslim countries too. पाकिस्तान जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा यानी कि ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना के अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी उनके अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं. Okay, now we will discuss one by one the different regions where the Muslim countries are located. अब हम different regions discuss करेंगे जहाँ पे Muslim countries हैं. तो first of all we will discuss the continent Africa. अब continent Africa में सबसे पहले हम discuss करेंगे North and West Africa. So in the North and West Africa we have the country Morocco, Algeria, Tunisia, Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria and Chad. So these are the countries, Muslim countries from the North and West Africa. Okay, now Northeast Africa. In the Northeast Africa, the Muslim countries are Libya, Egypt, Sudan, Somalia and Djibouti. Okay, in the Middle East, continent Asia, we have Muslim countries like Turkey, Yemen, Jordan, Lebanon, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Oman and Iran. These are the countries, Muslim countries from the Middle East. You can also see in the map, this is the map of Middle East. Okay, now we will discuss the Muslim countries from the Asian continent. So first of all, we will discuss the Muslim countries from the Southeast Asia. So in the Southeast Asia, we have Bangladesh, Malaysia, Brunei and Indonesia. These are the Muslim countries from Southeast Asia. Okay, in the Central Asia, we have Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Azerbaijan. These are the countries, Muslim countries from the Central Asia. Okay, now we will discuss that all the Muslim countries, as they enjoy the good relations with each other, so just like the United Nation, जिस तरह से United Nation में पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो है वो उनके मेंबर्स हैं, वहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं. इसी तरह से जो मुस्लिम वर्ल्ड है यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है बाय द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसको हम कहते हैं OIC. So what is OIC? The Organization of Islamic Cooperation is the second largest intergovernmental organization after United Nations. OIC यानी कि Organization of Islamic Cooperation जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद. सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मिल बैठ के
फ्यूचर प्लानिंग करती है या अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करती है जो कि वर्ल्ड फेस करता है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन आती है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अब इस OIC में जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं, यानी कि इस्लामी दुनिया के जो ममालिक हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो OIC के मेंबर्स हैं। इस OIC में जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स वो आपस में मिल बैठ के अपनी कंट्रीज़ के डिसीजंस लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात रिलेशनशिप्स बढ़ाने की बातें होती हैं, डिफरेंट प्लानिंग्स करते हैं, बिज़नेस और ट्रेड वगैरह के लिए वो डिस्कशंस करते हैं इसमें। सो विद द मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट्स, अब OIC में 57 मुस्लिम कंट्रीज़ मेंबर्स हैं कवरिंग 4 कॉन्टिनेंट्स। अब 4 कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एक यूरोप में है अल्बानिया जो कि मुस्लिम कंट्री है, बाकी एशियन और अफ्रीकन की कंट्रीज़ हैं, सारे मिल के 57 कंट्रीज़ हैं जो कि OIC के मेंबर्स हैं। The OIC is the collective voice of the Muslim world to ensure and safeguard their interest on economic, socio and political areas। अब OIC में सारे मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज़ जो है वो इकट्ठे होकर अपनी सिक्योरिटी की बात करती हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को वो इंश्योर करने की बातें करती हैं। इसके अलावा जितने भी इकनॉमिक या ट्रेड से रिलेटेड बातें होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह को डिस्कस करते हैं, या और भी इसके अलावा अगर सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो उसमें डिस्कस होती हैं। द OIC हैज़ द इंस्टीट्यूशंस विच इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम्स। अब OIC जो है उसके मुख्तलिफ फिर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जो भी कंट्रीज़ डिसीजन लेती है तो वो इंस्टीट्यूशंस उन डिसीजंस को इंश्योर करते हैं ताकि उन पर काम हो, एक दूसरे के साथ वो रिलेशंस बढ़ाने के लिए आगे इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करती हैं। इट्स हेडक्वार्टर्स इज़ इन जदा। अब OIC का जो मेन ऑफिस है, जो हेड क्वार्टर है वो जदा में है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो कि सऊदी अरेबिया की सिटी जदा में है इसका मेन ऑफिस। So all the members of OIC meets from time to time to talk about the problems they are facing। अब OIC के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 57 कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, जो हेड्स होती हैं, वो हेड्स हैं वो OIC के एनुअली ईयर में एक दफ़ा वो मीटिंग करते हैं और जितनी भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि उसका कोई सलूशन निकल आए। Okay, the other topic is interdependence। Now what is interdependence? Interdependence means the reliance or dependence of two or more individuals on each other। interdependence का मतलब ये है कि एक या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स यानी कि जो अफराद होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं एक दूसरे पे। आजकल की दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके अकेले में। सो इन वन वे और अदर वे वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो इन टूडेज़ वर्ल्ड दिस डिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज्ड इवन मोर। सो आजकल की दुनिया में ये डिपेंडेंस जो एक दूसरे पे हम डिपेंड करते हैं और भी बढ़ गया है। ईच ऑफ अस डिपेंड्स ऑन अदर्स टू फुलफिल आवर नीड्स। तो हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे वुडन फर्नीचर की, ठीक है। वुडन फर्नीचर जो है वो कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। तो कारपेंटर को फर्नीचर बनाने के लिए अब उसको भी ज़रूरत होती है, वो डायरेक्टली फ़र्नीचर तो नहीं बना सकता ख़ुद से, उसको कपड़ा वगैरह चाहिए होता है, वुड चाहिए होता है जो कि उसको वो लोग सप्लाई करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बनाता है तो ऑब्वियसली उसको फर्नीचर बनाने के साथ साथ उस पर कपड़ा जो कवरिंग के लिए यूज़ होता है वो भी उसको चाहिए होता है। तो अकेले कारपेंटर जो है वो सिर्फ वुड से आपको फर्नीचर बना के देगा, जो कपड़े का काम है वो ख़ुद नहीं कर सकता। तो उसको डिफरेंट टेलर्स चाहिए होते हैं जो कि उसका वो काम करते हैं। तो कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए टेलर पे डिपेंड करता है ताकि वो उसकी हेल्प करे और फर्नीचर जो है उसको वो बनाए। सो टेलर जो है फिर उसको क्या चाहिए होता है? एक सीविंग मशीन चाहिए होती है, यानी कि उसको मशीनरी चाहिए होती है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। सो मशीन जो है वो कौन बनाता है? फैक्ट्री बनाती है। सो इस तरह से एक कारपेंटर जो है वो टेलर पे भी डिपेंड करता है, टेलर जो है वो मशीनरी पे डिपेंड करता है, और मशीन जो है वो फैक्ट्री वाले बनाते हैं तो वो उस पे डिपेंड करता है। तो इन वन वे और अदर वे ये सारा जो एक फ़र्नीचर होता है और उस पर डिफरेंट लोग जो हैं वो उससे एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे पे वो डिपेंड करता है तो हमें एक फ़ाइनल चीज़ मिलती है। सो इस तरह से कोई भी काम हो, कोई भी ज़रूरत हो तो हम एक
दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। सो नो बडी कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग दे नीड बाय देमसेल्फ। अब कोई बंदा, कोई शख्स जो है वो अपनी ज़रूरत खुद से पूरी नहीं कर सकता, एक दूसरे पे सब डिपेंड करते हैं ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। सो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। जस्ट लाइक पीपल कंट्रीज आल्सो डिपेंड ऑन वन अनदर। अब जैसे हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसी तरह से कंट्रीज़ भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। यू नो दैट टुडेज़ वर्ल्ड को हम कहते हैं ग्लोबल विलेज है। तो ग्लोबल विलेज में हम सब जो हैं कंट्रीज़ के साथ साथ हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल आप ले लें तो पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें मशीनरी भी चाहिए होती है अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए, या और हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, तो वो हम और कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री पर डिपेंड करती है। फूड से लेकर मशीनरीज तक जितनी भी आइटम्स हैं सब जो है एक कंट्री तो अपने लिए नहीं बना सकती। तो अपनी कंट्री जो है वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड करती है ताकि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। दैट इज़ वाई द कंट्रीज़ नीड टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईच अदर। और इसी वजह से कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस रखती है। जब कंट्रीज़ के एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे तो ऑब्वियसली उनके रिलेशंस अच्छे होने की वजह से वो बिज़नेस करेंगे, वो ट्रेड करेंगे, तो इस तरह से वो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करेंगे। अगर कंट्रीज़ के रिलेशन दूसरे के साथ अच्छे नहीं होंगे तो इस तरह से वो अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं कर सकते। सो कंट्रीज़ जो हैं वो चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या दूर की कंट्री हैं, तो सब कंट्रीज़ यही कोशिश करती है कि उनके जो रिलेशंस है वो एक दूसरे के साथ अच्छा हो ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो कंट्री जो है वो उसकी ज़रूरत को पूरा करे। इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड ऑफ कंट्री, द कंट्री ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर द गुड रिलेशंस विद ईच अदर। सो इस तरह से जो रिक्वायरमेंट है, एक अगर उसको कोई गुड या सामान चाहिए होता है या सर्विसेज चाहिए होती है तो वो दूसरी कंट्री से वो अपनी ज़रूरत को भी पूरा करते हैं या उससे परचेज़ करते हैं। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज़ का काम जो है वो चलता है। सो इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। तो लोगों के साथ साथ कंट्रीज़ जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ डिपेंड करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।